So this is the extension of the last lecture that we talked about when we were talking about the basic difference between essay writing and paragraph writing, and I told you that an essay should be of 5 paragraphs, and then we practiced narrative essay, we practiced the expository essay as well. Now I'm going to tell you about the next type of essay, that is descriptive essay. As you can see from the word descriptive simply means describing something. When we use our senses, we have human faculties, human senses. For example, sensing, tasting, smelling, seeing, all these faculties that you use while writing are part of descriptive writing, जिसमें आप simply जो feel करते हैं, जो देखते हैं, जो सूंघते हैं, जो सुनते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, वो description होती है. For example, a descriptive writing is a style of writing which focuses on describing a character, a situation, or an event or a place in great details. The author visualizes what he sees, hears, tastes, and feels. There is something, now this is an example, there is something very calming about looking out over a tranquil lake, its surface as smooth as glass, reflecting the beautiful summer sky. Now you see what they are trying to say is it's very nice to see at the sky. That's the basic meaning of it. But they have added so many descriptive adjectives to it. If I want to say that I entered a classroom, that is a simple sentence that मैंने कमरे में entry ली. But if I add some descriptive words to it, I can say that on a Monday morning at 8:10 a.m. I was feeling very enthusiastic because it was a long class ahead. Finally, I touched the doorknobs which were in silver color, and I opened the door and I could see the blue covered sheeted seats in an empty large room with the beautiful scenario outside, etc., etc. So I have added more descriptive words. The point is the same, that I entered the room, पर उसमें मैंने डोर नॉब को टच किया, मैंने ये देखा, मैंने वो फील किया, मैंने सीट्स को ऑब्जर्व किया, लाइट को ऑब्जर्व किया, बाहर क्या नज़र आ रहा है उसको ऑब्जर्व, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने explain करती. That is descriptive writing. Similarly, when you write a descriptive essay, for example, if you write let's say you write on Qaid-e-Azam, as it says that description could be about a person as well, then whenever you write a descriptive essay, first you talk about the physical attributes, then you go for the abstract ones. When I say physical attributes, I simply mean कि जैसे वो दिखते हैं, जो उनके physical attributes हैं, वो एक टोपी सी पहनते थे, एक शेरवानी टाइप के कपड़े पहनते थे, उनका एक पहनने ओढ़ने का एक स्टाइल है, उनकी हाइट क्या थी, उनकी फिज़ीक कैसी थी, पतले थे, मोटे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी पहले बात होगी. उसके बाद उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात होगी कि वो बाबा कौम थे, ही डिड दिस, ही डिड दैट, ही ब्रॉट दिस, ही वॉज एबल टू कन्विंस पीपल, और उन्होंने फिर वो उनकी आप करेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं. अगर ये बात समझ नहीं आती तो लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल फिनोमेना. फॉर एग्जाम्पल, मदर्स आर एट होम, और अगर हमने अपनी अम्मी की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, सो ऑल ऑफ अस विल हैव डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. एटलीस्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन बहुत डिफरेंट आ सकती है, ठीक है. किसी की मदर जो है वो हो सकता है वर्किंग लेडी हो, किसी की हाउस वाइफ हो, किसी की जो है वो अपनी लुक्स पे बहुत काम करती हो, कुछ बहुत सादा सी हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी वेरिएशन आएगी. लेकिन जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो सिमिलैरिटी शो करे, क्योंकि मदर्स आर यूजुअली वेटिंग फॉर यू एट होम, दे ऑफर यू फूड, दे ऑफर यू कम्फर्ट, दे ऑफर यू अ फ्रेंड, अ हेल्पिंग हैंड एज वेल. तो आप सारा कुछ उनसे जाके शेयर करते हैं. आप अपने अम्मी के हाथ पाँव की डिस्क्रिप्शन, फेस की डिस्क्रिप्शन, आई लैशेस कैसी हैं, माथे का साइज़ क्या, इन सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं. सो व्हेन यू डिस्क्राइब अ पर्सन लाइक दैट, you can definitely use these things in order to describe that particular person. Same goes for the situation. Today you are going to attempt a event, right? उस event में आप बहुत कुछ notice करेंगे. एक तो सजावट सी हुई हुई है, that will be part of your description. Then you can give the description of why this day is being celebrated, what is the significance, and how is it related to your institution, because it has a separate department for earth sciences and environmental sciences and everything. That's why they have a very important day scheduled ahead, and that's why you are actually celebrating it. यही कोई फैशन डिज़ाइनिंग की यूनिवर्सिटी हो तो वो फैशन डेज़ मना रही होगी, कोई और तरह के डेज़ मना रही हो. ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंटल डे नहीं मनाएंगे, लेकिन उनका फोकस
अपनी फील्ड से रिलेटेड होगा। इसी तरह से अगर हार्ड साइंसेस की यूनिवर्सिटी है तो वो केमिस्ट्री डे, बायोलॉजी डे, कोई इस तरह के डेज़ मनाएगी। सोशल साइंसेस की है तो ह्यूमन राइट्स और इस तरह के डेट्स को मनाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ये भी दे सकते हैं कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कैंपस ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। आई होप इट्स क्लियर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, पर्सुएसिव ऐसे हो, नैरेटिव हो या एक्सपोजिटरी हो, ऑल काइंड्स ऑफ ऐसे जब भी आप ये अटैम्प्ट करेंगे एग्जाम में, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट 5 पैराग्राफ्स, बिकॉज अगर 10 मार्क्स का है तो हर पैराग्राफ के 2 नंबर होंगे। 5 पैराग्राफ डिवीजन सिंपल थी इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें इंट्रोडक्शन है, क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3 और कंक्लूजन है। हर पैराग्राफ को आपने completely complete करना है। When I say completely complete करना है, I simply mean to say that it should have an introductory sentence which is the topic sentence, it should have supporting details, it should have explanation, a logical explanation, coherence markers and conclusion. So each paragraph of your essay, 5 paragraph of your essay should have this. Conclusion की बात करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके ऐसे का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली ये बताते हैं कि पूरे ऐसे में आप क्या बात करने वाले, क्या क्या बातें करेंगे, उसको इनलिस्ट करते हैं। और कंक्लूजन में आप वही बातों को रीस्टेट करते हैं, एक और डिफरेंट मैनर में उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू राइट डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में आई होप यू रिमेंबर कहानी की बात है, यू नरेट समथिंग। फिक्शन राइटिंग इज़ डिफरेंट, जिसमें आप टोटली अपनी दिल से मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं। नैरेटिव राइटिंग इज़ मोर लाइक अ नैरेटिव ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, आज के इवेंट के बाद आप एक साल बाद इसके बारे में लिखते हैं तो आप नरेट करेंगे कि ये दिन था, ये डेट थी, ये हो रहा था, ये क्लासें हो रही थी, हमने इस तरह से सजावट की, हम इस तरह से अर्थ डे के लिए क्लोथिंग करके आए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ कोई पत्ते वगैरह लगा कोई किसी किस्म की कॉस्ट्यूम उन्होंने पहनी है, वो सारा कुछ अब नरेट करेंगे, कहानी की तरह बताएंगे, ठीक है। फिर अगर हम एक्सपोजिटरी ऐसे की बात करें, उस दिन हमने बात भी की थी कि एक्सपोजिटरी ऐसे एज सिंपली एज जिसमें आप फैक्ट्स को स्टेट करते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं आप उन्हें सिर्फ बताते हैं, उनको क्लेम करते हैं लेकिन उनको काउंटर अटैक नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम। फिर आगे देखिए हमारे पास परसुएसिव ऐसे आता है। परसुएसिव ऐसे these are types of essays that I am describing. इनसे रिलेटेड सेपरेटली मॉड्यूल्स अपडेटेड हैं, उसमें आप एक एक ऐसे का सैम्पल देखेंगे। फॉर दिस टाइप आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज कैसे यूज़ की है डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे के लिए। लैंग्वेज एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, टेंस चेंज होगा, लेकिन लेंथ वैसे ही रहेगी, ठीक है। पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट 5 पैराग्राफ्स एंड एज small as 210 words are enough। 210 से 250 लफ्ज़ के बीच में आप ऐसे लिख दें, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर उससे एक्सटेंड हो जाए तो गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी डिवीज़न यानी मार्किंग इस तरह की जा सके, सो दैट आई कैन आई हैव अ मार्जिन टू गिव यू मोर मार्क्स। अगर आप 3 पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं तो आई डोंट हैव द मार्जिन टू गिव यू मोर मार्क्स। डिवीज़न करने के लिए, मार्किंग करने के लिए अगर आप 5 पैराग्राफ लिखेंगे तो मेरे लिए उसको अगर मैं हर पैराग्राफ का 1 नंबर भी दूंगी तो 5 नंबर तो आएंगे ना, तो दैट गिव्स मी अ चांस टू गिव यू मोर मार्क्स। दैट्स व्हाई गो फॉर 5 पैराग्राफ्स ऐसे। देन वी हैव परसुएसिव ऐसे। परसुएशन इज सिंपली किसी को कन्विंस करना, कायल करना, परसुएड करना दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट। जब हमें कोई पॉलिसी बेचने आता है या इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की या प्रॉपर्टी की या लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहती है तो आपको किस तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपको ये फ़ायदा होगा, आपको वो फ़ायदा होगा। एक कार्ड आया था कुछ अर्से पहले, सेहत कार्ड फॉर द पीपल हु वर 60+, और अगर वो ये करवा लेते हैं तो उनकी फ्री इलाज होता है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। तो लोगों को कैसे परसुएड किया गया कि आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, विच वॉज ट्रू इन द इनिशियल डेज़, ऐसा ही था, लेकिन इवेंचुअली उसमें भी पेमेंट आ गई। कार इंश्योरेंस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी है। आप एक गाड़ी लेते हैं, आप उसे इंश्योर करा सकते हैं। इंश्योर कराने के बाद क्या होगा कि आपको मंथली पेमेंट करनी है या ईयरली पेमेंट करनी है। वो पेमेंट करने से ये फ़ायदा होगा, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में
होती है, उसको कोई स्क्रैच लगता है, कोई आकर मार देता है, आपसे कोई मिसहैप हो जाता है, पार्क करते हुए आप उसको साइड से लगा देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की बेसिस पे वो इंश्योर्ड होती है, यानी जो उसको ठीक करवाने का जो पैसा है वो कंपनी देती है, फिर आपको नहीं देना पड़ता। तो ये सब करवाने के लिए वो परसुएड करते हैं। व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट कार, तो जो मैंने ली पहले ही, बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, all my life saving for 8 years was went gone, and the insurance guy would tell me that you should insure it. मैंने कहा इंश्योरेंस मनी कितनी है, मंथली कितनी? आई couldn't afford it, it was too much for my monthly payment और सैलरी। मैंने कहा मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। then he gave me two reasons to think again. the first reason was कि आप कहीं पार्क करेंगे तो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं खामखा ही की मार के चले जाते हैं, खामखा ही। आपको पता है आजकल की गाड़ियों की जो क्वालिटी हैं, दे आर वेरी बैड। वो मतलब उन्होंने 3 डब्बा सा लगाया हुआ, आप उसको आप कितने मतलब थिन से बच्चे हैं, आप भी उसको मुक्का मारे उसमें डेंट पड़ जाता है, डिंग नहीं पड़ता, डेंट पड़ता है सीधा, क्योंकि वो इतनी लो क्वालिटी की है। उसने कहा कि अगर कोई आप भी करेंगे तो आप ऐसे करें, उसमें डेंट पड़ जाएगा। वो डेंट निकलवाने के लिए अच्छे खासे पेमेंट चार्ज करते हैं ये जो वेंडर्स होते हैं। फिर उसने मुझे ये कहा कि आप, बिकॉज आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में चला रही हैं, आप पार्क करते हुए हर चौथे दिन कहीं ना कहीं लगाएंगी। अब उस बार उसने हमको एक तरह से डरा भी दिया और समझा भी दिया कि येस, एंड इट डिड हैपन बिकॉज आई वॉज लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, और इस एज में आपको पता है थोड़ी सी वो थ्रिल भी नहीं होता, हमारी ज़रूरत है, शौक़ नहीं है, डिफरेंस आ जाता है ना उस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं वो लगी, और अब वो इंश्योर्ड नहीं थी, तो जब उसको ठीक करवाने में गई तो इट वाज अ हेफ्टी अमाउंट दैट दे चार्ज्ड। एक छोटे से डिंग एंड डेंट के लिए वो 2-3 हज़ार ले रहे हैं। तो उसकी कन्विंसिंग पावर ठीक थी, लेकिन आई डिडंट हैव द नॉलेज दैट ही वाज राइट एट दैट टाइम। सो नाउ आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट गेटिंग इट इंश्योर्ड बिकॉज आई विल कीप डूइंग इट, दिस विल कीप हैपनिंग। समटाइम्स वी डोंट डू इट, अगला इंसान आकर कुछ ना कुछ आपको स्क्रैच या टच कर जाता है और उसकी भी होता है। तो यू सी, परसुएजन इज़ लाइक दैट। अब आपने मुझे परसुएट करना है कि मैम आप हमसे एक ऐसा टास्क लें जिसमें कोई मार्क्स कटिंग का कोई चांस ही ना हो। तो उसको परसुएट करने के लिए आप मुझे 2-3 रीजंस देंगे। एक कि मैम हमारा स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड, हमको कोई मतलब फिर गिला सा नहीं रहेगा कि मैम ने हमें एक्स्ट्रा चांसेस नहीं दिए। थर्ड, आप ये कह सकती हैं, आप मुझे ये कह के कन्विंस कर सकते हो कि मैम आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। एज अ क्लास आई एम पार्ट ऑफ यू, यू आर पार्ट ऑफ मी, मेरा भी एक रिज़ल्ट है तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप हमें एक और चांस देंगे। तो ये कन्विंसिंग पावर है, ये परसुएशन पावर है। परसुएसिव एसेज या परसुएसिव राइटिंग आपके फील्ड में आपको कैसे हेल्प करेगी? जब भी आपने कुछ भी लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी किस्म का आंसर लिखना है, आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि वट एवर यू आर सेइंग डज मेक सेंस, ऑल्दो इट कुड हैव अ फैक्ट बेस्ड नॉलेज बिहाइंड इट, बेसिस हो सकती है, लेकिन आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। इफ़ वी रीड द डेफिनेशन ओवर हियर, persuasive writing is a type of writing which contains justifications and reasons to make someone understand an issue from their perspective. ठीक है, एज अ नॉविस कार बायर वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर मेरे पास शायद नॉलेज होती तो मैं उसको ज़्यादा सोचती, उसको टाइम देती। इसी तरह से अगर आप ये जो मैंने मार्किंग वाली बात की है, आप में से जो बच्चे एक्चुअली ए ग्रेड अचीव करना चाहते हैं वो इसके बारे में सोचते होंगे कि वी शुड टॉक टू द टीचर एंड वी शुड गेट सम काइंड ऑफ सोल्यूशन आउट ऑफ इट। तो वो परसुएट करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे अटेंडेंस लगवा कर कुछ बच्चे जाते भी होते हैं, लेट भी आते हैं, फिर भी वो मैम लगा देना, मैम ये हो गया था, वो हो गया था, ये कन्विंस करने की वो कोशिश करते हैं, समटाइम्स इलॉजिकल रीजंस के साथ और समटाइम्स लॉजिकल रीजंस के साथ। Now there is an example given over here for persuasive writing. Now with the technological revolutions and discoveries that made our past history, we seem to pay little attention to nature, getting more and more disconnected from it every day. However, the links we have with nature cannot disappear. There are a number of key reasons in favor of the concept that people should try to connect with nature more than they do today. So you see, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो हैं लेकिन नेचर से दूरी है। जितनी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ते भी होंगे, आपको ज़्यादा मुझसे पता है, तो वो आप स्टेट करेंगे, फैक्ट्स को लिखेंगे। आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा मेंशन कर सकते हैं कि इतने
परसेंट ये खामी आ चुकी है, इतने परसेंट ये वाली डेंसिटी आ चुकी है, इट हैज़ कॉज्ड दिस थिंग एंड वी नीड टू रिकनेक्ट विद नेचर एंड समथिंग लाइक दैट. यू कैन ट्राई टू कन्विंस योर ऑडियंसेस दैट उनको अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है तो उनको अपने रूट्स के पास भी वापस जाना है. So these are the 4 types of essay and writing that you must pay attention. These are posted in your Google Classroom. Let me show you. This is week number, Walaikum Assalam, not week, lecture number 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने अलग अलग रखा है तो ये बहुत एक्सटेंसिव होगा. नहीं, एक एक रीडिंग है, एक एक पेज की रीडिंग है, आपने पढ़ना है. अलग अलग लेक्चर इस तरह से है सो दैट आपको पता चले कि ये सब पढ़ना है. एक जगह में पोस्ट करती तो आप उसको अलग अलग ना पढ़ते. ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन चले मैं आपको बता देती हूँ. सिंस यू गाइज आर हियर, यू आर गोइंग टू हैव एन एसे इन योर एग्जाम, राइट? वन ऑफ दीज, इन्हीं में से एक जो एग्जाम्पल टॉपिक्स दिए हैं मैंने इन चारों में, उन्हीं में से एक टॉपिक आएगा. इससे ज़्यादा मैं आपको आसान क्या कर सकती. यस, जो इनमें एग्जाम्पलीफाई किए गए हैं उन्हीं में से एक आधा टॉपिक आएगा. आप इन्हीं में से पढ़ लें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे. ठीक हो गया? ऐसे राइटिंग समझ आई? टाइप्स ऑफ ऐसे कौन से आपने फोकस करने समझ आई? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस